SBG, look into the leading light. Yes. Leading light of Indo. Proud to say, on behalf of Foundation of Critical Choices of India, I extend you a warm welcome. It's a proud moment for us being here with all of you. And first, our apologies. When we planned this conference at that time, we did not know that there will be parliament session going on at the same time. So some ministers and other dignitaries couldn't join because of that. Also, the weather, we did not plan that. And the third, little bit we have to learn also about our own community. 500 confirmations, so we had to stop that registration process. I don't know, they will trickle down later, but somehow we have to start, we cannot wait too long. Whether on one hand we are a little bit concerned that no high level political participation. The most important for us is, of course, that dignitaries we respect most. We are talking about Viksit Bharat, and there can be no Viksit Bharat without a Surakshit Bharat. And to keep it safe as our army, and it's a proud moment that at least two army generals are now present. More will join later. Also, a brigadier, some captains. So that's the part as from the Indian Army side. That's absolutely honor for us. General Lamba and Major General SVP Singh among us now. Others will join later. We are also absolutely honored that the other pillar, when we are talking about Viksit Bharat, there can be no Viksit Bharat if 50% or more than 50% of our population is attached to agriculture. If our kisans, farmers are not developed, and that's why it's also an honor that we have also representation from Bharatiya Kisan Union, All India Kisan Coordination Committee. So that again, that slogan of Jai Jawan, Jai Kisan, we are getting that here. Another very important sector we have, of course, we are based in Netherlands, and there's a bridge between India and the Indian diaspora are our diplomats. And it's a proud moment for us that three of former ambassadors, Madam Leela Panappa, Madam Neelam Sabharwal, and Shri Venu Rajamani, three of them are already here. More are going to join. Even we expect Ambassador of Argentina a little later. Tomorrow, the Dutch ambassador will be joining us. More Indian ambassadors, foreign ambassadors. So it's a proud moment that these dignitaries are bridging the gap between India and Indian diaspora. Thanks for being here. Go deeper into that our history. He will also show a couple of pictures with Dr. Abdul Kalam, who went to the. It's a kind of myth living with some of the Indians, if not all, that overseas Indians or Indian diaspora, Indians who left, they are not concerned about India. I would repeat again, I have said very often that we went out of India. India went never out of us. Every milestone, and today this conference especially is commemorate not only 45 years of existence of our own organization, but also 75 years of Indian democracy. Of course, that is something that we celebrate every year, and also coincidentally 75 years of Indo-Dutch cooperation.
because we are from the Netherlands, and in that also, as I said, we are also collaborating with the Indo-Dutch Chamber of Business and Sciences to celebrate the 75 years of cooperation. So all these aspects and many more will, in the coming 2 days, will be discussed, and I hope that will give little more insight into our possible contribution. We came here just to know how we as Indian diaspora can contribute more, how we can serve India in a better way. And to do that, we need first-hand information from that our own leaders here, our diplomats, our media, our even our primarily I would say our Kisan Bhais, because as I said, that's the backbone of our Indian economy. 50% of population depending on that. So that is going to happen in the coming 2 days, and we will be discussing all these aspects in a very extensive and broader manner, and not to consume more of your time because we started already late. You and them any longer. I want to thank you again for your attention. Wish you all a very pleasant and successful conference, and thanks for your patience. Jai Hind. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल है और मैं फाउंडेशन फॉर क्रिटिकल चॉइसेस फॉर इंडिया, जो कि ओल्डेस्ट थिंक टैंक है जो यूरोप में नेदरलैंड में स्थित है, उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो देखिए, हम यूरोप से आए हैं, नेदरलैंड से आए हैं और हम प्रवासी भारतीय हैं, जो हिंदी में प्रवासी भारतीय कहते हैं, इंग्लिश में उसे इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। तो हम ये बताने आए हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा है, जो विश्व के करीब करीब सारे देशों में स्थित है, इस समय करीब करीब 3.5 करोड़ प्रवासी भारतीय जो बाहर गए हुए और जो बाहर बसे हुए, जिसे हम NRI के रूप में भी पहचानते हैं, या कुछ लोग OCI या PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के रूप में भी पहचानते हैं, वो वहाँ स्थित है। ये लोग सिर्फ आज कल नहीं गए हुए, ये आज़ादी के पहले से लेके, आज़ादी के बाद से लेके, पिछले कुछ सालों से लेके ये लगातार जाते रहते हैं। शुरुआत के दिनों में ये कहा गया था कि हमारे यहाँ से पढ़ लिख के बाहर जाते हैं, ये हमारा ब्रेन ड्रेन है, हमारे यहाँ नुकसान हो रहा है, लेकिन ये नुकसान नहीं हुआ है। ये उन्होंने वहाँ जाके अपनी जड़ें जमाई है, वहाँ अपना नेटवर्क बनाया है, वहाँ उन्होंने पैसा कमाया है, वहाँ वो बड़े बड़े संस्थाओं के बड़े बड़े पद पे स्थापित हैं, हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो। अगर आप देखें, वर्ल्ड बैंक के जो आज हेड है वो भारतीय है, कई देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भारतीय रह चुके हैं और है जो और यूरोप में भी अब बहुत तेज़ी से ये अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये करीब करीब साल में, पिछले साल अगर मैं एक बात कहूँ तो इन्होंने करीब करीब 136 या 135-136 बिलियन डॉलर, अब मैं उसे करोड़ में गिनूँ तो वो हज़ारों करोड़ में होगा। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इतना पैसा उन्होंने पिछले साल भेजा है और लगभग इतना पैसा ही वो हर साल भेजते हैं, जो कि बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा है। और हम अपना जो रोल है, हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ पैसा भेजने तक सीमित रहे और आप बोलो बेटा बाहर खुश रहो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम आपका जो सपना है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, भारत सरकार का, हम उस विजन के साथ खड़े हैं। हम उनको हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिला के या उनका सहयोग करना चाहते हैं और विकसित भारत के रूप में, भारत में जो भी हमारे तरफ से हम कंट्रीब्यूशन हो सके वो करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर दो देशों के बीच में योगदान बढ़ेगा, दो देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा, दो देशों के बीच में लेना देना बढ़ेगा, तो उसमें तो दोनों तरफ का फायदा है, तो उसमें तो ऐसी कोई नुकसान की बात नहीं है। अगर रिलेशन का देखा जाए तो इंडियन इंडस्ट्रीज को लेके है, कल्चर को लेके है, हाँ, और भी कई तरीके की। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम तो यूरोप से आए और यूरोप की करीब करीब 6000 कंपनियां भारत में काम कर रही है, बहुत बड़ा नंबर है बेसिकली। तो इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। यहाँ की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है जो हम यहाँ ला सकते हैं। अब जैसे नेदरलैंड में एक गाय 30-30, 40-40 लीटर दूध दे देती है, यहाँ की गाय कम दूध देती है। वहाँ खेती की, यानी 1 एकड़ में कितनी खेती होती है। और उस समय के जो मंत्री जी थे, वायलार रवि जी, वो नेदरलैंड आए थे
और 2009 में हमने नेदरलैंड में यूरोप का पहला प्रवासी भारतीय दिवस स्थापित किया था। ठीक। जब पंजाब प्रॉब्लम आया था, बता रहा हूँ 1985 में हमने एक कॉन्फ्रेंस की थी यूके में जाके, और पंजाब समस्या के हमने 10 समाधान दिए थे, और उसमें से 8 समाधान जैसे के वैसे शब्द बाय शब्द गवर्नमेंट ने उस समय उठाए थे या लिए थे। हमने उसका कोई क्रेडिट नहीं लिया और न लेना चाहते हैं, लेकिन वो उस चीज़ में सहयोग हुआ था, क्योंकि जब हम बाहर होते हैं तो हम मुक्त रूप से सोच सकते हो और एक ऐसी फीडबैक दे सकते हैं जो भारत के लिए सही हो। देखिए, हम नॉन सेक्युलर, नॉन गवर्नमेंट, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे लिए भारत फर्स्ट है, हम सभी तरह की सरकारों के साथ काम ठीक है। अभी देखा जाए तो अभी जो जिस तरीके से क्राइसिस खड़ी हुई है इंडियंस में, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरीके की क्राइसिस खड़ी हो रही है, हाँ। इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? कैसे कुछ कॉपरेशन लाने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट में? देखिए, डिफेंस एक सेंसिटिव सेक्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, लेकिन हम भारत सरकार के सिर्फ कान और आँख नहीं है, हम उनके हाथ और पैर भी है। वो हमसे जो चाहेंगे या जहाँ हमें जैसे भी हमारी मदद हो पाएंगी, चाहे हमें कोई चीज़ को पुश करना हो या लॉबी करना हो या कोई चीज़ में उनका सहयोग करना हो या उस चीज़ को, कोई चीज़ को आगे बढ़ाना हो, या आप चाहते कि हम वहाँ की गवर्नमेंट में रह के उनसे कुछ बात करें किसी मुद्दे पे कि आप किसी देश को ये ना बेचें या ये मत दें, इस तरह की चीज़ों में भी मैं बहुत स्पेसिफिकली नहीं जाना चाहूँगा, ये बहुत सेंसिटिव सेक्टर है। लेकिन कोई भी क्षेत्र में जो भी हमसे बन पड़ता है, जो भारत के लिए अच्छा हो, वो हम काम करना चाहेंगे। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, थैंक यू। तीसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो इंडियन डायस्पोरा है अब अपने चरम पे है, और ये समय हमेशा नहीं रह पाएगा। आने वाले जो जवान देश है इस समय, और ये लोग भी अब बूढ़े हो गए। 1947 में हम इतने जवान नहीं रह पाएंगे, तो अब हमें पूरी कोशिश करना है, और ये कोशिश सिर्फ सरकार द्वारा नहीं होनी चाहिए, बाहर वालों के द्वारा भी होनी चाहिए और हमारी जनता के द्वारा भी होनी चाहिए कि 2047 में हमको खड़े रह के फिर ये न कहना पड़े कि अब और 20 साल रुकिए आप विकसित भारत होने के लिए। अब हमें बनना ही है और अभी हमें कोई नहीं रोक सकता। विषय प्रोडक्शन ऐसा है जी, प्रोफेशन से तो मैं वकील हूँ। मुझे मौका मिला, मेरा नाम जसबीर सिंह है, मौका मिला हॉलैंड में पहला वकील, यानी कि इंग्लैंड से बाहर पूरे यूरोप में पहला हिंदुस्तानी वकील बनने का। तो अब लॉ फर्म खोली, अब बच्चे भी दोनों वकील हैं वहाँ, तो ये तो प्रोफेशनल रहा। ये आपकी तारीफ हो गई सर, बहुत अच्छा लगा आपकी तारीफ सुन के कि आप पहली बार जो है फॉरेन में जाके और पहला इंडियन वकील जो है नीदरलैंड को दिया आपने। अच्छा, आगे हम जानना चाहेंगे कि आज का जो आपका 2 दिवसीय कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आपका क्या उद्देश्य रहा है और क्या आप करने वाले हैं? ऐसा है कि हम पिछले जो 53 साल बार हो गए, तब से कोशिश है कि हम अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर पाएँ। तो जब वहाँ रहते हैं तो हर वक्त दिल में यही रहता है कि हम पैदा हुए यहाँ पढ़े, इस मुल्क ने हमें इस काबिल बनाया कि हम यहाँ से बाहर जाकर दूसरे देश में अपना नाम कमा सकें, अपने देश का नाम रोशन कर सकें। तो दूसरी तरफ ये है कि हम क्या अपना कर सकते हैं, हमारे वो एक जिम्मेदारी है जो हम पे, कि हमारे जो जिम्मेदारी बनती है कि जिस मुल्क ने हमें इस काबिल बनाया, तो उसके लिए हम क्या करें। तो मकसद अब यही है कि अब क्योंकि हमारा भारत का एक नारा है कि 47 में जब हमें 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के, तो हमारा भी गिनती उन देशों में होनी चाहिए जिनको हम बोलते हैं डेवलप्ड, विकसित देश। हमने जब शुरू किया, देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त तो हम गरीब देश कहलाते थे, फिर उसमें ये था कि विकसित हो रहा है, तो अब वो जो मंजिल है वो है विकसित जो मुल्क की, कंट्री की। तो वो जो एक विकसित राष्ट्र जो हम देखना चाहते हैं, तकरीबन आज के 22 साल बाद सोच रखा है, तो उसमें हमारा योगदान क्या होगा। नीदरलैंड का हमारे हिंदुस्तान के साथ, वो भी आप जैसे हमें 45 साल हो गए, वो हमारी दोस्ती को, इन दोनों की मुल्कों की दोस्ती को वो 75 साल हो गए, तो वो भी हम मना रहे हैं। तो जैसे हमारा संविधान को भी 75 साल हो गए। हमारी कोशिश है नहीं इस जो मित्रता को, इस जो मिलकर काम करना है उस मुल्क के साथ, इसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे वाटर मैनेजमेंट, जिसको कि हम पानी का इंतज़ाम ना हो तो भी, ज़्यादा है तो भी, जिसको कैसे कंट्रोल करना, कैसे यूज़ करना, यहाँ तक कि समुद्र के पानी को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, वहाँ तक बात। दूसरा, वहाँ छोटा सा मुल्क है जो सिर्फ इसकी आबादी दिल्ली के बराबर है, तो इसके बावजूद वो जो खाद्य पदार्थ हैं
फूड जो, तो वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ये अंदाज़ा लगाइए, हमारे 50% लोग किसान के धंधे में हैं, वो सिर्फ 10 लाख लोग हैं। तो अगर वो सोचिए कि अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है इधर, तो हमारा मुल्क कितनी तरक्की करेगा। अगर हम खेती बाड़ी के, हमारी सरकार सोचती है कि किसानों की आय दुगनी कर दें, दुगनी क्या 5 गुना हो सकती है अगर टेक्नोलॉजी को ठीक तरीके से हम यूज़ करें। इसी डेवलपमेंट को आप आगे लाना चाहते हैं? ये जो चीज़ें हैं जिनमें हम स्पेशली ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब पानी के मुद्दे में, खेती के मुद्दे में, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे एनवायरनमेंट है हमारा साफ सुथरा है, यहाँ मुश्किल आती है। तो उसमें अभी यही हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उसके ऊपर स्पेशली एक सेशन रखा है कि किस तरीके से हम जो यहाँ का जो वेस्ट है उसको हम वेल्थ में कैसे तब्दील कर सकते हैं। कॉटन की प्रॉब्लम है, ये मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ की टेक्नोलॉजी हमें इस भारत को विकसित करने में मदद मिलेगी। हमें खुशी होगी, गर्व होगा इस बात के कि हमने उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा योगदान। ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा कि आप इंडिया को क्या कहना चाहते हैं? इंडिया को तो हम वही कहना चाहते हैं कि हमें ये जो हम पे कई बार थोड़ा वो ताना देते हैं ना कि ये लोग भारत छोड़कर चले गए, वो बार बार मैं कहता हूं, हम भारत छोड़कर, भारत ने हमें कभी नहीं छोड़ा। तो हर पल हमारा हर सांस के साथ हम हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं और यही जिम्मेदारी का एहसास है हमें कि हमें क्या करना है। तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान वाले जो यहाँ रह रहे हमारे भाई बहन, हमारे माई बाप, सब लोग वो हमें बताएं कि किस तरीके से हम भारत माँ की और किस तरीके से हम सेवा कर सकते हैं। वो हमारे लिए सबसे आने का मकसद भी वही है, हमारी ज़िंदगी का मकसद भी वही है। तब हम सब समझेंगे अपने आप को कि हमने कुछ अपने मुल्क के लिए कर पाए। तो वही ख्वाहिश लेकर हम यहाँ आए और उम्मीद है कि वो हमारी ख्वाहिश पूरी होगी। आप लोग हमें बताएंगे और सब यहाँ के नेता हैं जो साइंसदान हैं, तो वो हमें बताएंगे कि आप लोग वही आप कहते हैं कि 3.5 करोड़ लोग हैं, इतनी इनकम है आपकी, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, तो बताइए आप क्या करेंगे। तो वो हम जानना चाहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। शुक्रिया बहुत आपका।